آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی خبریں۔ آج ہے 12 مئی 2026 اور یہ رہی آج کی سرخیاں۔ ہرمز بنا 500 کلومیٹر کا جنگی زون، ایران نے دیا دنیا کو چیلنج۔ ایٹمی جنگ کی دھمکی، ایران نے پہلی بار کہا دوبارہ حملہ ہوا تو نیوکلیئر بم بنانے کے لیے یورینیم کر لیں گے انرچ۔ پینٹاگن کا بڑا خلاصہ، ایران کے ساتھ جاری جنگ میں اب تک 29 ارب ڈالر پھونک چکا ہے امریکہ۔ لیبنان میں سیز فائر تار، اسرائیلی ایئر فورس کا گھر پر حملہ، 6 لوگوں کی موت سے پھیلا خوف۔ پاکستان کی باورچی خانوں میں گیس کا کرائسس، گیس کی قلت سے خواتین پریشان، بدل گئی کھانا پکانے کی ٹائمنگ۔ چائنا کا ایئر ٹکٹ ہوگا مہنگا، جیٹ فیول کی آسمان چھوتی قیمتوں نے چینی ایئر لائنز کے ہاتھ پیر پھلائے۔ ان ہیڈ لائنز کے علاوہ بھی ہیں کئی اہم خبریں۔ آزاد بول انڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے، میں ہوں عادل خان آزاد اور یہ ہے اسپیشل پرائم ٹائم شو دنیا بھر کی خبریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں تفصیل سے خبروں کا یہ سلسلہ۔ ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز کو لے کر ایک بہت ہی حیران کر دینے والا اور بڑا اعلان کر دیا ہے۔ 12 مئی کو ایران کی ریولوشنری گارڈز کارپس یعنی IRGC نے صاف کیا کہ اب ان کے لیے ہرمز صرف ایک چھوٹا سا سمندری راستہ نہیں بلکہ ایک بہت بڑا آپریشنل ایریا بن چکا ہے۔ ایرانی نیوی کے سینئر افسر محمد اکبر زادے نے بتایا کہ ہرمز اب چند جزیروں تک محدود نہیں رہا بلکہ اسے ایک بہت بڑے آپریشنل زون میں بدل دیا گیا ہے۔ ایران کی ملٹری اب اسے جنگ کے لحاظ سے ایک بہت اہم علاقے کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ دوستوں، ایران کے مطابق ہرمز کا دائرہ جو پہلے صرف 20 سے 30 میل ہوا کرتا تھا، اسے بڑھا کر اب 200 سے 300 میل یعنی قریب 500 کلومیٹر تک کر دیا گیا ہے۔ یہ علاقہ جاسک اور سرک سے لے کر کیشم آئلینڈ اور گریٹر ٹونب کے پار تک پھیلا ہوا ہے۔ ایران نے اسے ایک مکمل کریسنٹ کا نام دے دیا ہے۔ IRGC نے صاف طور پر خبردار کیا ہے کہ اس کی فوج اس پورے علاقے میں ہونے والی ہر چھوٹی بڑی حرکت پر پینی نظر بنائے ہوئے ہے۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اب اس 500 کلومیٹر کے دائرے میں کسی بھی دشمن ملک کے جہاز یا ملٹری موومنٹ کے لیے ایران کی اجازت کے بنا نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ جانکاروں کا ماننا ہے کہ ایران کا یہ قدم سیدھے طور پر ہرمز کی ناکے بندی کو اور زیادہ سخت کرنے کی تیاری ہے۔ امریکہ اور اس کے ساتھیوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ دنیا کا ایک بڑا حصہ تیل کی سپلائی کے لیے اسی راستے کے بھروسے ہے۔ فی الحال ایران کے اس اعلان نے پوری دنیا کے سمندری ویپار اور سیکیورٹی کے سامنے ایک بڑا سوال کھڑا کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس 500 کلومیٹر کے آپریشنل زون کو چیلنج دیں گے یا پھر ایران کی یہ نئی گھیرا بندی ہرمز کے سمندر کو جنگ کے نئے میدان میں بدل دے گی۔ دوسری خبر سنیے، امریکہ اور ایران کے بیچ سیز فائر اب خطرے میں ہے اور اسی بیچ ایران نے اپنی نیوکلیئر پاور بڑھانے کی دھمکی دے دی ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ نے ڈرایا ہے کہ اگر امریکہ نے دوبارہ حملے شروع کیے تو وہ یورینیم کو 90% تک انرچ کر سکتے ہیں، جو ابھی 60% تک ہے۔ 90% تک انرچ کر سکتے ہیں جو کہ سیدھا ایٹمی ہتھیار بنانے کے کام آتا ہے۔ یہ ایران کی وارننگ ہے۔ سیدھا کہا جا رہا ہے یا انڈائریکٹ لفظوں میں کہ ایٹم بم بنائیں گے۔ ایران کی نیشنل سیکیورٹی اور فارن پالیسی کمیشن کے ڈپٹی فارن منسٹر لیول کے افسر ابراہیم رضائی نے صاف کہا کہ اگر پھر سے حملہ ہوا تو پارلیمنٹ میں 90% انرچمنٹ کے راستے پر غور کیا جائے گا۔ یعنی ایران سیدھے نیوکلیئر بم بنانے کی دھمکی دے رہا ہے۔ ایران نے ایسی دھمکی پہلی بار دی ہے۔ اگر اس خبر کو تفصیل سے دیکھنا ہو تو ہمارا پچھلا ویڈیو دیکھیں، یہ ایک بہت بڑی خبر تھی، اس لیے میں نے اسے اس شو میں لیا، حالانکہ میں کبھی اپنے شو میں خبر کو ریپیٹ نہیں کرتا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ اب تک 29 ارب ڈالر کھا چکی ہے۔ پینٹاگن کے ایک بڑے افسر نے یہ جانکاری دی ہے۔ 12 مئی کو خبر آئی ہے۔ پینٹاگن میں بجٹ کا کام دیکھ رہے جوس ہرسٹ نے امریکی سینیٹرز کو بتایا کہ اس بھاری بھرکم خرچے میں ہتھیاروں کی مرمت، پرانے سامان کی جگہ نئے ایکوپمنٹس لانا اور جنگ کے دوران ہونے والے تمام دوسرے خرچے شامل ہیں۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ آنکڑا پچھلے مہینے کے اندازے سے 4 ارب ڈالر زیادہ ہے۔ دوستو، جنگ کے لگاتار کھنچنے کی وجہ سے امریکہ پر یہ مالی بوجھ تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ اب ایران سے باہر چلتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے ساؤتھ لیبنان میں ایک گھر پر ہوائی حملہ کر کے 6 لوگوں کو مار دیا ہے۔ 12 مئی کو یہ حملہ لیبنان کے کفر ڈونین علاقے میں ہوا جو بیروت سے قریب 100 کلومیٹر دور ہے۔ امریکہ کی کوششوں سے ہوئے سیز فائر کے معاہدے کے بعد بھی اسرائیل کی طرف سے یہ کارروائی کی گئی ہے، جس سے یہ صاف ہے کہ سیز فائر صرف کاغذوں تک ہی رہ گیا ہے اور اسرائیل اس
इस चीज़ का, इस नाम का कोई मायने जानता भी नहीं, ना इज्जत करता है। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब लेबनान और इसराइल के अफसरों की वाशिंगटन में मुलाकात होने वाली है। लेबनान की नेशनल न्यूज़ एजेंसी है NNA, इसके मुताबिक इसराइल ने इस हमले के साथ ही कई और इलाकों को खाली करने की धमकियां भी दी। लगातार हो रहे हमलों की वजह से सीज़फायर पूरी तरह से नाकाम होता नजर आ रहा है और लेबनान के लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। उधर हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम ने लेबनान की रेजिस्टेंस फोर्सेस की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह के ड्रोन्स ने इसराइली फ़ौज का घेरा तंग कर दिया है और दुश्मन की हर हरकत पर पैनी नज़र रखे हुए हैं। 12 मई को रेजिस्टेंस के कमांडरों और फाइटर्स के नाम अपने मैसेज में शेख नईम कासिम ने कहा कि दुनिया की मगरूर ताकतें उनके ड्रोन से थर थर काँपती हैं। ये नईम कासिम का दावा है। कासिम ने दावा ये भी किया कि रेजिस्टेंस की मिसाइलों ने दुश्मन का जीना मुहाल कर दिया है और उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को पूरी तरह से ठप कर दिया है। ये बात हकीकत है। जो हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच इस बार जंग छिड़ी है, ईरान पर जंग छिड़ने के बाद, इस बार हिजबुल्लाह के हमलों में FPV ड्रोन्स का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, जिससे कभी आयरन डोम, कभी फौजियों, कभी टैंक्स और बुलडोजर्स को बहुत एक्यूरेटली निशाना बनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। इसराइली राइट्स ऑर्गेनाइजेशन बिगकोम ने एक बड़ा खुलासा किया है कि मकबूजा यरूशलेम यानी अल-कुद्स शहर में फ़लस्तीनियों के खिलाफ भेदभाव वाली, डिस्क्रिमिनेशन वाली प्लानिंग पॉलिसीज़ तेज़ी से बढ़ रही हैं। इसराइल पेचीदा ओनरशिप प्रूफ और एब्सेंटी प्रॉपर्टी जैसे कानून का सहारा ले रहा है ताकि फ़लस्तीनियों को उनकी ही अपनी ही ज़मीन के कागजात ना मिल सकें और वो वहाँ कोई तामीर ना कर सकें। इसराइली जो बाहर से आए वो फ़लस्तीनियों से उनकी ज़मीन के प्रूफ मांग रहे हैं कि बताओ कि ये ज़मीन तुम्हारी कैसे है, प्रूफ दो। हैरानी की बात यह है कि जहां फ़लस्तीनियों के लिए ये प्रोसीजर नामुमकिन बना दिए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ नाजायज़ सेटलर्स को बड़ी सहूलतें दी जा रही हैं, इलीगल सेटलर्स को। इसराइल हज़ारों नए सेटलमेंट्स यूनिट को मंजूरी दे रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने 2300 डुनम यानी कि लगभग 900 बीघा ज़मीन के 99% हिस्से को इसराइली प्रॉपर्टी के तौर पर रजिस्टर कर लिया, अपनी मिल्कियत बना लिया है बपौती। उसका अगला प्लान यह है कि साल 2029 तक यरूशलेम की पूरी ज़मीन को इसराइली ज़मीन के तौर पर रजिस्टर कर लिया जाए। दोस्तों, ये साफ तौर पर फ़लस्तीनियों को उनकी अपनी ज़मीन से बेदखल करने की एक बहुत बड़ी साजिश मानी जा रही है और इसराइल नाम का मुल्क इस ज़मीन पर बनवाने वाली ताकतें, अमेरिका हो, बरतानिया हो, UN हो, वो सब मुंह में लस्सी डाले खामोश बैठी हैं। आगे बढ़ते हैं, गज़ा की बात करते हैं। गज़ा में लोग भूखे हैं। गज़ा के मछुआरे इसराइली नाकेबंदी और पाबंदियों की वजह से पाई पाई को मोहताज हो गए। ये सिर्फ मछुआरों की कहानी है। समंदर पर इसराइल के सख्त पहरे और पाबंदियों ने उनके काम को पूरी तरह से ठप कर दिया है। ये मछुआरे अपनी जान जोखिम में डालकर मामूली और पुराने इक्विपमेंट्स के सहारे गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगातार गिरते कारोबार ने उनके चूल्हे ठंडे कर दिए हैं। पहले तो फायरिंग से बच जाएं, मछलियाँ मिल जाएं तो बिकती नहीं। इन हालात में गज़ा के मछुआरों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करना भी एक बड़ी जंग बन गया है। इसराइल की पाबंदियों ने न सिर्फ उनकी रोजी रोटी छीनी है, बल्कि उनके लिए समंदर के रास्ते भी बंद कर दिए हैं। इन भूखे और बेबस मछुआरों की ज़िंदगी अब सिर्फ चंद मीटर के दायरे में सिमट कर रह गई है, जहां से उनके लिए अपने बच्चों का पेट पालना भी नामुमकिन होता जा रहा है। गज़ा के बारे में बस आप तसव्वुर कीजिए। चाइना की एयरलाइंस 16 मई से डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने जा रही है। महंगी हो रही हैं फ्लाइट्स। ईरान की जंग की वजह से जेट फ्यूल की कीमतें लगातार ऊपर जा रही हैं, जिसे देखते हुए ये फैसला चाइना में लिया गया है। गौरतलब है कि पिछले महीने ही इस चार्ज में 6 गुना इजाफा किया गया था। पिछले महीने फाइनेंशियल न्यूज़ आउटलेट येकाई के मुताबिक चीनी एयरलाइंस हर महीने की 5 तारीख को फीस बदलने की अपनी पुरानी परंपरा को रवायत को तोड़ते हुए बदलाव कर रही है। नई कीमतों के मुताबिक 800 किलोमीटर या उससे कम दूरी की फ्लाइट्स के लिए सरचार्ज 30 युआन बढ़ाकर अब 90 युआन कर दिया जाएगा। वहीं इससे अलग लंबी दूरी के रास्तों के लिए सरचार्ज में 50 युआन चाइनीज़ करेंसी है, 50 युआन की बढ़ोतरी होगी, जिसके बाद ये टोटल 170 युआन हो जाएगा। एयरलाइंस का कहना है कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की बढ़ती कीमतों के चलते उनके पास किराया बढ़ाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। अब तो कई मुल्क के प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर्स भी
अपने लोगों से कह रहे हैं कि पेट्रोल बचाओ, गैस बचाओ, ज़रूरी ना हो तो कार से मत चलो। महामानव सब लोग आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में गैस की किल्लत अब सीधा किचन तक पहुंच गई और ख्वातीन की पूरी सुबह अब इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। इस मुसीबत की वजह से औरतों को सुबह जल्दी उठना पड़ रहा है ताकि वो जल्दी जल्दी खाना पका सकें। पाइपलाइन के थ्रू आने वाली गैस के आने और जाने के टाइम के हिसाब से उन औरतों को अपने पूरे दिन के काम और आराम का टाइम बदलना पड़ रहा है। मई का दूसरा हफ्ता चल रहा है। शदीद गर्मी में हाल और बुरा हो चला है। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले के बाद से पाकिस्तान में एनर्जी का मसला और भी गहरा गया है। हाल ही में जो गैस सरप्लस में थी वो अब भारी कमी में बदल गई है। पाकिस्तान का एलएनजी इंपोर्ट 2021 में 8.2 मिलियन टन था, जो 2025 के आखिर तक गिरकर 6.1 मिलियन टन रह गया। इन हालात ने आम लोगों की ज़िंदगी, आम पाकिस्तानियों की ज़िंदगी पूरी तरह से मुहाल कर दी है। एक और खबर, 81 साल के योवेरी मुसेवेनी लगातार 7वीं बार युगांडा के प्रेसिडेंट बन गए हैं। उन्होंने 12 मई को हलफ उठाकर ये जिम्मेदारी फिर से संभाल ली है। इसके साथ ही अब उनकी हुकूमत 40 साल तक खिंच गई है, क्योंकि वो 1986 से ही मुल्क की कमान संभाले हुए हैं। जनवरी में हुए इलेक्शन में उन्होंने ज़बरदस्त जीत हासिल की थी, लेकिन इन इलेक्शन को लेकर काफ़ी तानातनी भी रही, इसलिए अब उन्होंने हलफ लिया। रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन के दौरान डराने, धमकाने और लोगों को अगवा करने जैसी शिकायतें सामने आई थीं। तमाम मुखालफत के बावजूद मुसेवेनी एक बार फिर से युगांडा की गद्दी संभालने में कामयाब रहे हैं। 2 से 3 खबरें यहाँ से। गज़ा का मंजर ये है। गज़ा में चारों तरफ मलबा है और उसी मलबे के बीच से एक बच्चा स्कूल जा रहा है अपना मुस्तकबिल तलाशने के लिए। बैग कंधों पर है, चारों तरफ टूटी इमारतें हैं। वो रास्ते जो स्कूल के जाने के रास्ते थे, जहाँ इमारतें, घर खड़े हुआ करते थे, वहाँ अब कुछ भी नहीं बचा है। यही गज़ा है। और ये है इसराइल का वो एयरपोर्ट जिसके बारे में हमने आपको कल भी बताया था। ये वीडियो आया है, बताया जा रहा है यहाँ पर अमेरिका के वो जहाज़ खड़े हैं जो हवा में ही फाइटर जेट्स में तेल डालते हैं, और इनकी यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। टेल ही टेल उनकी आपको दिख रही होंगी, यानी ऐसा लगता है कि किसी बड़ी जंग की तैयारी है। और एक खबर ये भी आई थी जो हमने आपको नहीं दी, हालांकि अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है, कि अमेरिका ने अपनी एक सबमरीन जो है वो जिब्राल्टर की तरफ भेज दी है और उसमें लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल्स भी लगी हैं। ये एक बड़ी बात है, कहा जा रहा है। और ये एक न्यूक्लियर सबमरीन है। फ़िलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।